Okay, good afternoon, everyone. So, first of all, to begin with today's webinar, I would like to request our dear parents to come and sit along with their wards. I would like to request our parents to come and sit along with their wards. Okay. One more time, please. I request all the parents to come and sit along with their wards. Okay, let's begin with today's webinar. Good afternoon, everyone. Today, we all have gathered here to discuss a very important yet the most ignored topic, our health. Before we begin with our webinar, I would like to thank our mentors, our worthy manager, Sir Mr. Sharat Chandran, and our charismatic headmistress, Ma'am, Miss Vidhu Vijayan Biju, who, even in these tough times, took the students' mental and physical health as their priority. They do not leave any stone unturned when it comes to tonight's welfare. Unfortunately, due to some prior commitments, Manager Sir and HM Ma'am couldn't join us in this webinar. But the show must go on, is what they told us. So we'll continue with this webinar. As you all know, due to the global pandemic, our immunity levels are dropping day by day. People are greatly stressed. Parents are worried about their kids' immunity and health. And we all have a lot of questions related to the deadly virus COVID-19. So, to answer all our questions and to enlighten us more on the topic, we are pleased to have Dr. Vipul Indora with us as our special guest for the day. Dr. Vipul is a doctor turned entrepreneur. He is a metabolic disease management expert. Dr. Indora's long-standing medical experience of over 10 years and deep-rooted research of over 5 years has made him successful in curing or reversing metabolic diseases like diabetes type 1 and 2, obesity, PCOS, thyroid, autoimmune diseases, and cancer. The treatment protocol works through understanding the exact root cause of their problems and providing them with the specific solution by integrative medicine, which combines positives of all fields of medicines like allopathy, Ayurveda, homeopathy, Tibetan, and others, weeding out the shortcomings of each with scientifically accurate diet and lifestyle to bring the most beneficial outcome on patients' health. He has also been a guest speaker at National FM Talk Show. He has also conducted health talks and seminars across Delhi or NCR, including hospitals and foreign embassies. This webinar comes for your rescue from deadly virus COVID-19 complications due to chronic conditions inside your body, whether you're aware of it or not. A hearty welcome to you, sir. Before we begin, I would like our dear participants to know that the chat box will be open at 1:30 p.m.
for your queries. So, dear kids, you can write your questions in the chat box, and once the session gets over, then I, as a moderator, would be reading out your questions to Sir, and Sir is going to answer them one by one. Now, without much to do, I would like to request our esteemed guest for the day to begin with the much awaited webinar. Over to you, sir. All right. Thank you so much, Manpreet, for this intro. Thanks a lot. I would also request you once more, because I can't see many parents out here in the screen. So I would want that they also join the students, so that it's important for them. It's important for them as well, irrespective of the age, and for their kids as well. So if you can just request them once more. Sure, sir. Once again, dear parents, our very dear parents, we request you all to kindly come and sit along with your kids, sit along with your wards, and be a part of this fruitful webinar. It is very important for all of us to enlighten ourselves about this webinar and about the causes. I would like all the parents to please come and be a part of this webinar. All right. So without any delay, then I'm going to start the presentation. I believe most of you are here. So let me just start it. So good afternoon, everyone. I'm Dr. Vipul Indora. Today, our topic of discussion is integrative medicine approach to prevent COVID complications and achieve best immune health, right? So how can integrative medicine give you best immunity and best health? So integrative medicine is basically a combination of all medical branches. आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि एलोपैथी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, आयुर्वेदा एलोपैथी से ज़्यादा अच्छा है, या होम्योपैथी जो है वो बेस्ट है. बट अल्टीमेटली इसका कोई भी सोल्यूशन, इसका आंसर ये नहीं है. इसका आंसर ये है कि सभी की सभी मेडिकल ब्रांचेस जो है वो करेक्ट है, लेकिन पार्शियली करेक्ट है. यानी कि कुछ पार्ट उनका करेक्ट है, कुछ पार्ट उनका, जैसे कि एलोपैथी में साइड इफेक्ट्स आते हैं मेडिसिन के, तो वहां से उनके वो ड्रॉबैक्स हैं. आयुर्वेदा में सभी चीज़ों का ट्रीटमेंट नहीं है. तो इंटीग्रेटिव मेडिसिन हम उसे बोलते हैं जिसमें कि पेशेंट के मैक्सिमम बेनिफिट के लिए या पब्लिक की मैक्सिमम हेल्थ एंड फिटनेस अचीव करने के लिए वी कंबाइन ऑल द एरियाज ऑफ मेडिकल स्पेशलिटीज, मेडिकल ब्रांचेस, एंड देन वी गिव देम द कंप्लीट सॉल्यूशन जो कि आपको क्योर कर पाए और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो ठीक कर पाए. सबसे अच्छी बात इंटीग्रेटिव मेडिसिन की ये है कि इसमें डाइट और एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है. रीजन बीइंग कि ज्यादातर जो मेडिकल ब्रांचेस हैं वो इस चीज को अवॉइड कर देती हैं कि हमारा जो डाइट और एनवायरनमेंट है वो हमारी हेल्थ को और हमारी फिटनेस को कैसे जो है अफेक्ट करता है. और ज्यादातर जो फील्ड्स हैं उनका इस तरफ ध्यान नहीं जाता है कि न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है. और आज के टाइम पे 80% जो बीमारियां हैं, जो डिजीजेज हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, वो डाइट या एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम, डाइट या एनवायरनमेंट के गलत होने की वजह से ही होती हैं, राइट? सो वी कांट इग्नोर दिस. तो इस चीज के बारे में मैं आपसे आज काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा. एंड कोविड के कॉम्प्लिकेशंस भी उन लोगों में ज्यादा होते हैं जिनके के ये सब चीजें इम्बैलेंस हो जाती हैं, जैसे कि डाइट सही नहीं है, एनवायरमेंटल फैक्टर सही नहीं है, और उसकी वजह से आपकी जो कुछ ऐसी क्रोनिक डिजीजेज हैं जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या डिजीजेज होती हैं बॉडी में जो हो जाती हैं इन सब चीजों से, सही चीजों को नहीं कंज्यूम करने से, एनवायरनमेंट को सही नहीं होने से ये सब चीजें हो जाती है, और इससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, और इन्फ्लेमेशन बढ़ने से बॉडी में कोविड के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने का खतरा बहुत हो जाता है. कोविड के क्या कॉम्प्लिकेशंस है मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा. देखिए, हम जो भी हमारी हेल्थ सर्विसेज हैं, हम लोग वी प्रोवाइड देम अंडर करेक्टिव क्योर, राइट? सो ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, ये मैं हमेशा मानता हूं, और अपनी प्रैक्टिस में भी, अपनी जो है एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं प्रैक्टिस करता हूं, तो मैं मानता हूं कि ग्रेटेस्ट मेडिसिन ऑफ ऑल इज टू टीच पीपल हाउ नॉट टू नीड इट. इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में जो सही ट्रीटमेंट है वो ये है जो कि आपकी दवाइयां छुड़वाए विद टाइम, या आपकी दवाइयों को छुड़वा दे या बिल्कुल मिनिमम कर दे, कम कर दे, ताकि उन दवाइयों के जो एक हार्मफुल साइड इफेक्ट्स है वो आपकी बॉडी में ना हो.
ऐसी बहुत सारी कंडीशंस, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें बीमारी से ज्यादा दवाई नुकसान दे जाती है बॉडी को, दवाई कॉम्प्लिकेट कर देती है सिस्टम को। तो हमारा जो एक इंटीग्रेटिव मेडिसिन अप्रोच है वो यही है कि आपकी जो दवाइयां हैं वो धीरे धीरे करके कम हो जाएं, अगर नहीं छूट सकती हैं, और अगर छूट सकती है तो बिल्कुल छूट जाए। सो दिस इज व्हाट इंटीग्रेटिव मेडिसिन इज ऑल अबाउट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो आर यू और योर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स? क्या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम्स हैं बच्चे में? ओबेसिटी यानी कि वेट गेन, वजन का बढ़ना, फैटी लिवर, हाइपर एक्टिव बिहेवियर, बच्चा बहुत ज्यादा उछल कूद करता है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रहता है, कभी शांत नहीं बैठता है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में आपके कॉन्स्टिपेशन, डायरिया दोनों आ जाते हैं। डेंटल इश्यूज हैं, डेंटल कैरीज हैं, दांतों में जो है इन्फेक्शन आ जाता है, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं? एस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, रिपीटेड कोल्ड एंड फ्लू का होना, कि बार बार जो है बच्चे को जो है जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो क्या ये कंडीशंस हैं बच्चों में? हाई बीपी है, आजकल बच्चों में भी हाई बीपी होता है, आजकल बच्चों में भी डायबिटीज के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन बच्चों में ये भी बहुत बढ़ रहा है। तो ये सभी की सभी कंडीशंस अगर बॉडी में ऑलरेडी हैं तो इनसे हमारे कोविड कॉम्प्लिकेशंस का खतरा बढ़ता है। कि भाई कोविड अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो एक तो तरीका ये है कि कोविड हो गया और जो है हमें कोविड ने ज्यादा नुकसान नहीं दिया, हफ्ते 10 दिन में हमारा इन्फेक्शन ठीक भी हो गया, हमें हल्का सा खांसी जुकाम बुखार हुआ, दैट्स इट। लेकिन दूसरा ये है कि कोविड होने के बाद में बॉडी इतनी कॉम्प्लिकेट हो जाती है कि लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क उससे आ जाती है। तो अगर हमारी बॉडी में ऑलरेडी ये सब बीमारियां हैं तो इनसे हमारा कोविड का कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। अब वो कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं देखते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए, these diseases make your child highly susceptible to developing COVID complications like निमोनिया एक कोविड का बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है। लंग्स डैमेज होते हैं, हार्ट एलिमेंट होते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, किडनी फेलियर होता है जो कोविड के पेशेंट्स हैं जिनको अगर कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। शॉक की कंडीशन आ जाती है, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब है कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है पूरी बॉडी को। आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है हमारे लिए कितना जरूरी है, हमारी बॉडी के लिए वी कांट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो अगर जो है ये सब कोविड में ये कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं और जो है हमें इन कॉम्प्लिकेशन से बचना है, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड द लिंक बिटवीन द डिजीजेस एंड कोविड कॉम्प्लिकेशंस। अब ये जो बीमारियां हैं जो मैंने आपको बताया कि वजन का ज्यादा बढ़ना या वजन बहुत कम होना भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना, या फिर जो है फीवर बार बार होता है, कफ एंड कोल्ड बार बार होता है, स्किन पे कोई एलर्जीज या इन्फेक्शन है वो जो है हो रहे हैं, ठीक है ना, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, तो इन सब से क्या होता है कि हमारी बॉडी में इन सभी बीमारियों से इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। और इन्फ्लेमेशन क्या है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। इन्फ्लेमेशन बढ़ने की वजह से कोविड के इन्फेक्शन से मतलब दिस हाई इन्फ्लेमेशन टर्न्स द कोविड इन्फेक्शन इनटू डेडली डिजीजेस। तो ये कोविड इन्फेक्शन हो तो गया लेकिन उसके बाद में उसका और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाता है, डेडली बन जाता है अगर हमारी बॉडी में पहले से ही हाई इन्फ्लेमेशन हो। और अगर हमारी बॉडी में हाई इन्फ्लेमेशन होता है तो भी हमें इन्फेक्शन होने का भी ज्यादा खतरा बना रहता है। तो इस वजह से हमें अपने बॉडी में इन्फ्लेमेशन लेवल्स को कम करना है, राइट? अब हम ये समझते हैं कि इन्फ्लेमेशन क्या है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि भाई इन्फ्लेमेशन क्या चीज है जब ये इतनी कोविड से की कॉम्प्लिकेशन से बढ़ जाती है और इन सभी बीमारियों से बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ होता है, तो आखिर ये इन्फ्लेमेशन है क्या चीज? तो आगे स्लाइड से आपको समझ में आएगा। So basically, inflammation is nothing. It is just a chemical reaction that starts to protect your body during injury, infection and insect bite, right? तो अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन होता है या इंजरी होती है, चोट लगती है या इंसेक्ट बाइट होता है तो इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ता है। बेसिकली तो ये प्रोटेक्टिव होता है, लेकिन इन्फ्लेमेशन जो है जब ज्यादा बढ़ जाता है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। अब पहले हम ये समझते हैं कि इन्फ्लेमेशन हमारे लिए प्रोटेक्टिव क्यों है। देखिए, जब भी आपको चोट लगती है तो उसमें क्या है कि उस एरिया में ब्लीडिंग होना शुरू होती है, लेकिन वो ब्लीडिंग को कौन रोकता है? वो ब्लीडिंग को इन्फ्लेमेशन ही रोकता है, क्योंकि ब्लीडिंग अगर हो जाएगी, देखिए जो ब्लड है वो ब्लड हमारे लिए लाइफ गिविंग है। अब कभी भी अगर एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले अगर उसका ब्लड लॉस ज्यादा हो जाता है पेशेंट का तो हॉस्पिटल में उसको ब्लड चढ़ाया जाता है, क्योंकि ब्लड के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। लेकिन अगर चोट लगती है, छोटी मोटी चोट लगती है, तो उसमें क्या होता है, ब्लड अपने आप ही थोड़ी देर जो है वो ब्लीड करता है फिर रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो है चोट के ऊपर एक ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है। तो वो ब्लड क्लॉट होने का जो मैकेनिज्म है वही इन्फ्लेमेशन है।
सो इन्फ्लेमेशन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो हमारे ब्लड को लॉस होने से बचाती है और हमें प्रोटेक्ट करके रखती है, राइट। फिर ऐसे ही हम करते हैं कि इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ या नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन हुआ, कोविड नहीं, नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन हुआ, तो उसमें भी क्या हो गया कि आपका जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन है वो बढ़ा, और इन्फ्लेमेशन से क्या होता है कि वो जो है बैक्टीरिया या वायरस को किल कर देता है। इन्फ्लेमेशन एक केमिकल रिएक्शन है जो बैक्टीरिया वायरस को किल कर देती है, तो आप बच जाते हैं, क्योंकि अगर बैक्टीरिया वायरस पूरे बॉडी में फैल गया तो फिर हमारे लिए वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है, राइट। फिर हम बात करते हैं इंसेक्ट बाइट की। सो इंसेक्ट बाइट से भी यही होता है कि आपका जो है जब भी कोई कीड़ा काट लेता है तो वहां पे भी इन्फ्लेमेशन आता है, और वो 2-3 दिन में आपकी, पहले तो आपका रेड हो जाएगा, वो एरिया स्वेलिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो वो ठीक इसलिए होता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन जो है आपको कंट्रोल कर रहा है सारी चीजों को, राइट। सो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि क्या हमारी बॉडी में केमिकल्स हैं, होते हैं, तो बिल्कुल आपकी बॉडी में केमिकल्स होते हैं। जैसे नेचुरल केमिकल्स होते हैं बॉडी में, बहुत सारे हजारों केमिकल्स होते हैं। जैसे एंटीबॉडीज, अगर आपने जो है पढ़ा भी होगा कि एंटीबॉडीज हमें बैक्टीरिया या वायरस को मारने में काम आता है, तो वो भी एक केमिकल ही है। तो बॉडी में ये सब नेचुरल केमिकल्स हैं, राइट। तो इन्फ्लेमेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है। सो हाउ डज एन इन्फ्लेमेशन लुक लाइक? इन्फ्लेमेशन दिखता कैसा है? देखिए, ये 4 पिलर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है। अब आप इसमें देखेंगे, ये फोटो आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है इन्फ्लेमेशन में एक तो आपका जहां पे भी आपको चोट लगी वो एरिया रेड हो जाएगा। जैसे अब इनके जो फिंगर हमने जो फोटो में दिखाई है, तो इस फिंगर में क्या है, एक फिंगर में इसमें बहुत इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है। कैसे पता चल रहा है? एक तो वहां पे या तो उनको चोट लगी है, इनको फ्रैक्चर हुआ है फिंगर में, या फिर इनको जो है किसी कीड़े ने, इंसेक्ट बाइट हुआ है, ठीक है, या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, कुछ ना कुछ इनकी फिंगर में हुआ है। अब इसमें क्या होता है, कैसे पता चलेगा? इन्फ्लेमेशन से ऐसे पता चलता है कि इसमें जो है रेडनेस हो गई है, रेड हो गया है, स्वेलिंग हो गई है। देखिए, आपको स्वेलिंग भी दिख रही होगी, ये फिंगर ज्यादा सूजी हुई लग रही है, स्वेलिंग लग रही है, इसमें ज्यादा मोटी लग रही है फिंगर, तो ये इन्फ्लेमेशन है। फिर पेन है, पेन भी इनको जो है, इनको देख के इनकी फिंगर को लगता है कि इनको पेन भी हो रहा होगा बहुत, और हीट जनरेट होती है। जब भी आप, अगर आप कभी रोड पे गिरे हैं, सड़क पे आप गिरे हैं, तो आपको चोट लगी, तो वहां पे आप देखेंगे कि वो हीट अप हो जाता है, एरिया गर्म हो जाता है, राइट। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ये हमारे जो स्किन के जो नीचे क्या चल रहा है, राइट, और हमारी बॉडी में क्या चल रहा है। अब आप देखिए, ये जो फोटो है, इसमें आपको काफी अच्छा समझ में आएगा दैट व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड द बॉडी और बीनीथ द स्किन। सो व्हाट हैपेंस इज, व्हेनेवर आपको जो है किसी भी तरीके से जो है आपका जो है, जब आप चोट लगती है या आपको इंसेक्ट बाइट होता है, तो वहां पे रेडनेस क्यों होती है? क्योंकि एकदम से ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो देखिए, जो बीच वाली जो पिक्चर है, उसमें एकदम से जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ गया, और ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से ब्लड में क्या होता है, आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स का कलर क्या होता है? रेड होता है। तो वो जो एरिया है ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से रेड हो जाता है, राइट। फिर उसमें स्वेलिंग क्यों आती है? स्वेलिंग इसलिए आती है क्योंकि क्या होता है कि ये जो ब्लड वेसल है, यानी कि जो ट्यूब। Sir, sorry to interrupt, sir. Since the meeting is about to get over in another 5 minutes, so we request all the participants to kindly log in again with the same PMI the very next moment, please. Okay. All of you kindly log in again with the same PMI with the very next moment for so that we can continue with our webinar. ओके। सो आप सभी लोगों ने सुन लिया होगा कि अगर ये सेशन एंड हो जाता है तो उसके बाद आप री लॉग इन कर सकते हैं। तो जैसा आपको मनप्रीत ने बताया कि आप री लॉग इन कर लीजिए अपना सेम लॉग इन आईडी और पासवर्ड यूज करके, ताकि हम अपनी प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू कर सके और मैं आपको वो सभी सीक्रेट्स बता सकूं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे आपकी हेल्थ और फिटनेस के लिए, राइट। सो ऑल राइट, सो व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड द बॉडी। अब इन्फ्लेमेशन में होता क्या है? मैंने आपको बताया रेडनेस है। रेडनेस क्यों हुई? क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ गया। जब भी चोट लगती है, जब भी इंसेक्ट बाइट होती है, तो उस एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और ब्लड फ्लो, क्योंकि आरबीसी का कलर रेड है, तो वो रेडनेस हो गई। अब स्वेलिंग क्यों आती है? क्योंकि क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, यानी कि ट्यूब्स में फ्लो करता है। कोई ट्यूब्स होती हैं, तो वो ट्यूब्स डायलेट हो जाती हैं, ये ट्यूब्स जो है फूल जाती हैं, स्वेल कर जाती हैं। तो वहां से क्या होता है कि उनसे जो जो हमारे ब्लड में जो वाटर है वो ऊज आउट कर जाता है, जिसको हम एक्सीडेट बोलते हैं, या जिसको हम जो है फ्लूइड बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। तो वो बाहर निकल जाता है ट्यूब से, और जब वो ट्यूब से बाहर निकल जाता है तो वो बाकी आसपास के सराउंडिंग टिश्यू में या सेल्स में इकट्ठे हो जाता है, और वो इकट्ठा फ्लूइड इकट्ठा होने की वजह से स्वेलिंग आ जाती है उस एरिया में, राइट। तो आपको ये समझना है कि वहां पे आपकी जो स्वेलिंग है वो इस वजह से आ रही है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है। तीसरा क्या चेंजेस है? देखिए, ये सबसे जो राइट में जो फोटो है, व्हाइट ब्लड सेल्स, तो व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं। अब व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में आर्मी है, जो कि बैक्टीरिया और वायरस को मार भगाती है। तभी तो क्योंकि बैक्टीरिया वायरस अगर पूरी बॉडी में फैल गया तो हमें
इन्फेक्शन फैल जाएगा और ये हमारे लिए बहुत रिस्की है। तो WBCs क्या करते हैं, WBCs आकर के उन जो भी बैक्टीरिया वायरस आपके बॉडी में एंटर कर गए हैं उनको वो मार भगाते हैं। तो इस वजह से वहां पे बहुत सारे WBCs आ जाते हैं, राइट। फिर हम बात करते हैं सबसे लेफ्ट में जो है रिलीज ऑफ एंटीबॉडी प्रोटीन्स। तो अगर आप एंटीबॉडीज जो है अगर आपके क्लास में कवर हो गया है तो आपको आइडिया होगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि एंटीबॉडीज क्या होते हैं। आपके WBCs जो है वो रिलीज करते हैं एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज ऐसे केमिकल्स हैं जो बैक्टीरिया या वायरस को खत्म करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो व्हाइट ब्लड सेल्स तो गन हो गया, और एंटीबॉडीज उसमें जो बंदूक की जो गोली होती है वो हो गई, राइट। तो जो उसकी जो गोली है, तो अब जो गन है वो तो WBCs है, वो रिलीज करते हैं एंटीबॉडीज को, यानी कि वो बंदूक से गोली निकलती है और वो गोली किसको खत्म करती है, बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करती है और आपको प्रोटेक्ट करती है, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप जो है इस जो है समझें कि आपके लिए इन्फ्लेमेशन कितना जरूरी है बॉडी के लिए, और वो जो है आपको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इन्फ्लेमेशन जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो बॉडी को नुकसान भी देता है। कैसे, आगे हम समझते हैं। सबसे पहले तो वाई इन्फ्लेमेशन इज प्रोटेक्टिव। आप समझ चुके हैं कि जैसे अगर चोट लगी, ब्लड जो है वो अगर इनडेफिनेटली ब्लड फ्लो करता रहेगा तो ये बॉडी के लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, लाइफ भी हमारी रिस्क में है। तो इन्फ्लेमेशन क्या करता है, वो इंजुरी को कुछ टाइम तक ब्लीडिंग के बाद रोक देता है, क्लॉट बन जाता है और ब्लड रुक जाता है। तो इन्फ्लेमेशन हेल्पफुल है। दूसरा, इन्फ्लेमेशन क्या करता है, वो बैक्टीरिया को या वायरस को किल करता है। तो अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरिया वायरस आ गया है, चाहे आप जो है नोज से लेकर के अंदर लंग्स में चले जाएं, चाहे आपको जो है चोट लग जाए रोड पे, तो सड़क पे भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं, तो वो सड़क से भी आपके जो है चोट में जा सकते हैं। तो वहां से भी आपको जो है इन्फ्लेमेशन आ जाता है। तो वो बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए वहां पे आपके ब्लड में से WBCs आ जाते हैं, तो आपको इन्फ्लेमेशन प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट। बट देन हाउ कम अ प्रोटेक्टिव रिएक्शन कॉजेज सच अ सीरियस डिजीज। जब एक इन्फ्लेमेशन इतना हमारे लिए प्रोटेक्टिव है तो वो हमारा दुश्मन कैसे बन जाता है, वो कोविड कॉम्प्लिकेशंस को कैसे बढ़ा देता है। तो इसका मैं आपको सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूं जो कि आपको बहुत इजीली अच्छे से समझ में आएगा। कि हम देखते हैं कि देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन सॉल्ट इन रेसिपीज एंड इन्फ्लेमेशन। तो सॉल्ट जब भी आप खाने में, जब खाना बनाते हैं और खाना खाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक लिमिटेड अमाउंट में सॉल्ट आपको चाहिए होता है, राइट। अब आप इसमें ये समझिए कि अगर सॉल्ट ज्यादा हो जाए तो भी आप खाना नहीं खा पाएंगे, और सॉल्ट अगर कम हो जाए तो खाना फीका होगा तो भी आप नहीं खा पाएंगे, राइट। तो आपको ये समझना है कि जैसे सॉल्ट की एक एडिक्वेट क्वांटिटी है उतना ही आप डाल सकते हैं। बहुत ज्यादा जाएगा तो भी आप खाना छोड़ेंगे, और बहुत कम हो जाएगा तो आपको खाना फीका लगेगा। इसी तरीके से इन्फ्लेमेशन का भी एक बॉडी में एक राइट अमाउंट होता है। इन्फ्लेमेशन भी तभी चाहिए जब हमें चाहिए। अगर इन्फ्लेमेशन हमेशा बढ़ा रहेगा जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो हमारी बॉडी को डैमेज करेगा, राइट। तो जिस तरीके से सॉल्ट की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है अमाउंट में, तो उसी तरीके से इन्फ्लेमेशन की होती है कि एक तो इन्फ्लेमेशन उसी टाइम पर आए जब हमें चाहिए, और दूसरा इन्फ्लेमेशन उसी क्वांटिटी में आए जितना हमें चाहिए। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आएगा तो भी हमारी बॉडी को नुकसान होगा और बहुत डेंजरस हमारी बॉडी को कोविड के कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे उससे। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा आपके लिए गुड इन्फ्लेमेशन है, कौन सा आपके लिए बैड इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। क्योंकि आप समझ गए कि इन्फ्लेमेशन गुड क्यों है और आप ये भी समझ गए बैड क्यों है। अब इसमें क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। देखिए, गुड